بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب ذوالجلال کا فرمان آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم۔ کائنات کے اندر کتابیں بہت زیادہ ہیں، ساری کتابوں کے اندر عیب بھی نظر آئیں گے اور جھوٹ کا گمان بھی کیا جائے گا، جبکہ کتابوں کے اندر عظیم الشان کتابوں کے اندر سب سے باکمال کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس ہے، اور اس قرآن مقدس کو اللہ رب العزت نے سارے عیبوں سے پاک کر کے رکھ دیا۔ کتابیں جتنی بھی لکھی جائیں ان کے شروع یا آخر میں لکھ دیا جاتا ہے کتاب میں کوئی عیب ہو تو ہم سے رابطہ کر لینا۔ یہ قرآن ایسا ہے، ایسی کتاب ہے جس کے شروع میں اللہ کریم نے لکھ دیا لوگوں اس کتاب میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی میں نے، بڑا عمدہ قرآن ہے۔ اور اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، او کائنات کے لوگوں اگر تم پکارو ان لوگوں کو، اللہ کے علاوہ جو لوگ ہیں، نبیوں کو، ولیوں کو، پیروں کو، بزرگوں کو، کسی بھی عظیم شخصیت کو، اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ پکارو، لا يسمعوا دعاءکم، فرمایا تمہاری پکار کو وہ نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس پاؤں ہے جس کے ساتھ وہ چلیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، اللہ فرماتے ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں جس کے ذریعے وہ پکڑیں؟ فرمایا ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں جس کے ذریعے وہ دیکھیں؟ فرمایا ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس کان ہے جس کے ذریعے وہ تمہاری باتوں کو سنیں؟ ہر بندہ عقل مند ہے، جس وقت روح نکلتی ہے، میت گھر میں پڑی ہوتی ہے، ہر بندہ کہتا ہے اب یہ سنتا نہیں، ہر بندہ کہتا ہے اب یہ بولتا نہیں، ہر بندہ کہتا ہے یہ کچھ سمجھتا نہیں، ہر بندہ کہتا ہے یہ دیکھتا نہیں، جبکہ اسی بندے کو جب قبر کے اندر داخل کر دیا جائے، مٹی ڈال دی جائے، تو اس وقت ہر بندہ کہتا ہے ہمارے بزرگ سن رہے ہیں، ہمارے بزرگ دیکھ رہے ہیں،
हमारे बुजुर्ग खा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हर चीज को महसूस कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, आप लोगों ने सुना, अम लहुम आज़ान यस्माऊना बिहा, अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए कान नहीं है जिसके जरिए वो सुने, फरमाते आंखें नहीं है जिसके जरिए वो देखें। अब वो कब्र के अंदर चले गए बुजुर्ग, रूह उनकी निकल गई, वो सुन नहीं सकते। क्यों नहीं सुन सकते? फरमाया उनके अंदर ताकत नहीं है। ताकत जिसके अंदर हो, रूह जिसके अंदर हो, सुन वो ही सकता है, उसके अलावा सुन कोई नहीं सकता। अल्लाह फरमाते हैं जिसको मर्जी पुकार लो, अल्लाह के अलावा जिसको मर्जी पुकार लो, वो तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकता। अल्लाह फरमाते हैं अच्छा तुम कहते हो मुर्दे सुनते हैं, तुम कहते हो अल्लाह के अलावा भी बुजुर्ग सुनते हैं। अल्लाह फरमाते हैं तुम अपनी अजीम शख्सियत को कहते हो कि ये शख्सियतें सुनती हैं, देखती हैं, सब कुछ महसूस करती हैं। अल्लाह फरमाते हैं फिर सुनो कुरान, वलौ सामिऊ मस्तजाबू लकुम, अगर वो सुन भी ले तुम्हारी बातों को, तुम्हारे कौलों को, तुम्हारी पुकारों को, तुम्हारी हाजतों को, तुम्हारी मुश्किलों को सुन भी ले, अल्लाह फरमाते सुन नहीं सकते। अगर सुन भी ले मस्तजाबू लकुम, वो तुम्हें जवाब नहीं दे सकते। क्यों? जवाब देना, हर किसी के कलाम को सुनना, हर किसी की बात को सुनना, हर किसी को देखना, हर किसी की हिफाजत करना, हर किसी की मदद के लिए पहुंचना, हर किसी की मुश्किल कुशाई करना, ये खासा सिर्फ एक अल्लाह का, उसके अलावा किसी का ये खासा नहीं है। हर जगह सुनने वाली जात भी अल्लाह की, देखने वाली जात भी अल्लाह की। इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं वलौ सामिऊ मस्तजाबू लकुम, जिनको तुम पुकारते हो, पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो, तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे। अल्लाह फरमाते हैं बिल फर्ज सुन भी ले, सुनते नहीं, सुन भी ले मस्तजाबू लकुम, तुम्हें जवाब नहीं दे सकते। जब तुम्हें जवाब नहीं दे सकते, फरमाया तुम्हारी हाजत रवाई को कैसे पहुंच सकते हैं, मुश्किल कुशाई को कैसे पहुंच सकते हैं, तुम्हें रिस्क कैसे दे सकते हैं, तुम्हारी बेटियां कैसे दे सकते हैं, बेटे कैसे दे सकते हैं। इसलिए बेटे देने वाला भी कोई नहीं, बेटियां देने वाला भी कोई नहीं, रिज़्क देने वाला भी कोई नहीं, सब कुछ करने वाली जात एक अल्लाह की। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं इन तदूहुम ला यस्माऊ दुआकुम, ओ कायनात के लोगों, अगर तुम इन लोगों को पुकारो जिन पर मौत आ जाए, नबियों पर मौत आ गई, उन्हें तुम पुकारने लग जाओ, वलियों पर मौत आ गई, तुम उन्हें पुकारने लग जाओ। फरमाया ला यस्माऊ, ला यस्माऊ, ला यस्माऊ, तुम्हारी पुकार को नहीं सुन सकते। क्यों या अल्लाह, क्यों नहीं सुन सकते? अल्लाह फरमाते हैं उसके अंदर जो आला था सुनने का, उसके अंदर जो आला था देखने का, उसके अंदर जो आला था ताकत का, अल्लाह फरमाते हैं हमने उस आले को खींच लिया, उस रूह को हमने खींच लिया। अल्लाह फरमाते हैं अब रूह मेरे कब्जे में आ गई। फरमाया बयौमल कियामति तुबासून, अब वो रूह क़यामत के दिन लुटाई जाएगी, उससे पहले रूह नहीं आएगी। जब रूह क़यामत से पहले आएगी नहीं तो फिर वो रूह उस जिस्म में दाखिल होगी नहीं। जब होगी नहीं तो फिर मैयत सुन सकती नहीं, फिर मैयत देख सकती नहीं, फिर मैयत बोल सकती नहीं, फिर मैयत हरकत कर सकती नहीं, फिर मैयत बाहर निकलकर लोगों को रिज़्क पहुंचा सकती नहीं, फिर मुर्दा लोगों की हाजत रवाइयां नहीं कर सकता। हाजत रवाइयां करने वाला अकेला अल्लाह, मुश्किलों को हल करने वाला अकेला अल्लाह, मुसीबतों में पहुंचने वाला अकेला अल्लाह, उसके अलावा कोई हाजत रवा नहीं, उसके अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, उसके अलावा बेड़ियां पार लगाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए अल्लाह का कुरान भी बार बार कह रहा है जिनको तुम पुकारते हो ये तुम्हें जवाब नहीं दे सकते, पुकारो उस अल्लाह को जो तुम्हें जवाब भी देता है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे जब तुमसे पूछे ना कि अल्लाह किधर है, फरमाया उन्हें बता दो अल्लाह तुम्हारी शारग से भी ज्यादा करीब है।
तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब है। जिस शारक से तुम सांस लेते हो, इस शारक को यूं पकड़ लिया जाए, 1 सेकंड के लिए तुम्हारे सांस बंद हो जाएंगे, तुम पर मौत आ जाएगी। जानी अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे सांस से भी ज्यादा करीब तुम्हारा रब है। जब तुम्हारा रब है, फरमाया फिर उसी को पुकारो, उसके अलावा किसी को ना पुकारना। अल्लाह क्यों तुझे क्यों पुकारे? फरमाया उजीब दावत दाई ज़ादान, पुकारने वाला जब भी मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता भी हूँ, उसकी पुकार का जवाब भी देता हूँ, और मैं जी जी करके जवाब देता हूँ। मुझे पुकारने वाला 1 मर्तबा पुकारता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पुकारने वाला जब अल्लाह को पुकार कर हटता है जाता है, अल्लाह करीम उसे 70 मर्तबा जवाब देते हैं, जी जी मेरे बंदे क्या चाहता है। इसलिए पुकारना किसे चाहिए? खालिसतन एक अल्लाह को, उसके अलावा कोई हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई, पुकारों को सुनने वाला, दुरूद व सलाम सुनने वाला कोई नहीं। हर चीज को सुनने वाली जात कौन है? एक अल्लाह की, उसके अलावा कोई जात ऐसी नहीं जो सुन सकती हो। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान का अकीदा अपने जहन के अंदर ले आओ, अपने दिल के अंदर ले आओ, कुरान के अकीदे को मजबूती से पकड़ लो। क्यों अल्लाह का कुरान बार बार ये कह रहा है? इसलिए अल्लाह का कुरान बार बार कह रहा है शिर्क से बच जाओ, गैरुल्लाह के नजरों नियाज देनी छोड़ दो, गैरुल्लाह की नजरों नियाज खानी छोड़ दो। ये अल्लाह क्यों कह रहा है? बार बार कह रहा है, इसलिए कह रहा है, फरमाया वयौमल कियामती वयौमल कियामती, जिस दिन क्यामत का दिन होगा, फरमाया क्यामत का दिन होगा, यकफुरूना बिशिरकिकुम, जिनकी नजरें तुम खाते थे, जिनकी नजरें तुम देते थे, जिनको तुम समा का कायल समझते थे, जिनको तुम सुनने वाला समझते थे, जिनको तुम हाजित रवा समझते थे, जिनको तुम मुश्किल कुशा समझते थे, अल्लाह फरमाते हैं वयौमल कियामती, क़यामत के दिन यकफुरूना, वो तुम्हारा इनकार कर देंगे, कहेंगे या अल्लाह इन्होंने हमें नहीं पुकारा, ये तो हम पर झूठ बांध रहे हैं, या अल्लाह इन्होंने नहीं पुकारा, इन्होंने हमारे नाम की नजरों नियाज नहीं दी, ये झूठ बोलते हैं। फरमाया क़यामत के दिन ये इनकार कर देंगे। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि तुम पहले ही उनको छोड़ दो, उस रब को पुकारो जो हर वक्त सुनता है, हर किसी की सुनता है, फिर इनकार करने वाला भी नहीं। बल्कि क़यामत के दिन जो लोग खालिसतन अल्लाह को पुकारते होंगे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो तो अल्लाह के अर्श के साया में होंगे, जिन्होंने कभी शिरक नहीं किया होगा, खालिसतन अल्लाह को पुकारते रहे, फरमाया वो अल्लाह के अर्श में होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, क़यामत के दिन ये मौलवी ये पीर इनकार कर देंगे। इसलिए खालिसतन अल्लाह ही को पुकारो, उसके अलावा किसी को ना पुकारो। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना।